Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Muhammad Imran Saeed, and today we are going to start the first chapter of human computer interaction. And the title of this chapter is The Human. So, here we need to study about the human, how they look at the things, how they think about the things, how they want the options on their screens. So, we have the overview of today's lecture that has human as a system, input output channels, and the human memory. So let's start. We always consider a human as a system, right? We just say that human is a system that takes some input, and then on the basis of that input our mind processes the data, and then in the reaction of that input or on the basis of that processing we output the information or we act accordingly. I give you an example. When we are playing badminton, when I look at the shuttle coming towards me, my eyes send that image to my brain, and then brain processes that data. It just recognizes the shuttle. It just tries to understand the speed and direction of the shuttle, and then it gives me the output. It tells my arm to just move in the way where that shuttle is coming, or how to hit it back. So this is the way the human works. So we can see now, takes input, processes data and outputs, and then input output channels are used to receive information and to respond. Like I can see, I can hear. So we have different channels that we will discuss afterwards, right? And then I keep the information in my memories. For example, I have got so many images in my mind, in my brain, right? So shuttlecock in fact is saved in my mind. So whenever that shuttle is coming towards me, I can simply recognize that, okay, that is a shuttle, there is a cricket ball, there is a hockey ball, there is a football. So in fact there are so many patterns saved in my brain, right? Similarly, so many voices, voice of my father, voice of my mother, voice of my brother, voice of my sister. So there are so many patterns saved in my brain. So my brain is behaving like hard disk, and my eye, my ear, my nose, my tasting sense, my tongue, right? In fact, these are the input channels, then my hand, then my tongue. These are my output channels, right? Now let's check about these channels. Vision, hearing, and let me explain in Urdu, sorry. आज का चैप्टर जो है ह्यूमन के बारे में है, और हम किसी भी इंसान को एक सिस्टम कहते हैं. जैसे कुछ इनपुट चैनल्स होते हैं, आउटपुट चैनल्स होते हैं, वो सुन सकता है, देख सकता है, और वो कुछ चीज़ें याद रख सकता है. तो इसकी मिसाल मैंने यूँ दी कि अगर हम बैडमिंटन खेल रहे हों और हमारी तरफ अगर शटल आए, तो फ़ौरन हमारी आंखें उस तस्वीर को, उसकी मूवमेंट को हमारे दिमाग की तरफ भेजती है, और दिमाग उसकी तस्वीर से पहचानती है, अच्छा ये शटल है, और फिर वो देखती है किस रफ्तार से आ रही है, ये किस डायरेक्शन में आ रही है, और वो उसके मुताबिक सिग्नल करती है हमारी आर्म को, हमारे हाथ को, कि हमने किस डायरेक्शन में, किस एंगल में रैकेट को लेकर जाना है और उस शटलकॉक को वापस भेजना है. तो अगर हम इसको देखें तो हम इनपुट लेते हैं इंसान, हम डेटा को प्रोसेस करते हैं, हम उसको आउटपुट या रिस्पॉन्ड करते हैं. सो इनपुट आउटपुट चैनल्स आर यूज्ड टू रिसीव इंफॉर्मेशन एंड टू रिस्पॉन्ड, एंड इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन मेमोरी. हमारे दिमाग के अंदर मुख्तलिफ तस्वीर, मुख्तलिफ आवाज़ें स्टोर्ड हैं. मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि मेरे दिमाग में कार की तस्वीर स्टोर्ड है, जब कभी कोई गाड़ी मेरी तरफ आ रही होगी तो दिमाग फ़ौरन मुझे बताएगा कि ये गाड़ी है. कोई अगर क्रिकेट बॉल आ रही होगी तो मुझे बताएगा, फुटबॉल आ रही होगी तो बताएगा. कोई मेरा दोस्त जब मेरे सामने आएगा
तो वो मुझको बताएगा कि देखो ये तुम्हारा फलां दोस्त है, और लिहाजा हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर्ड होता है। तो हमारा दिमाग हार्ड डिस्क की तरह काम करता है। हमारी आँखें, कान, टेस्ट करने की, स्मेल करने की जो सेंसेस हैं, ये सब हमारे इनपुट चैनल हैं। हमारे हाथ, पैर, हमारे बोलने की ताकत, ये सब हमारे आउटपुट चैनल्स हैं। तो इंसान बिल्कुल एक ऐसा ही सिस्टम है जिसकी तरह कंप्यूटर काम करता है। Now we talk about the input-output channels, vision, hearing, touch, movement, taste, smell. हमारे पास ये तमाम ऑप्शंस हैं जो कि हम देख रहे हैं और जो हम कंप्यूटर के अंदर ज़्यादा यूज़ करते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द कंप्यूटर आर vision, hearing, touch and movement. So these are few input channels and output channels that we use in the computer, right? So the first thing, how we use these इनपुट आउटपुट चैनल्स, हम इन्हें इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर हम एक चैनल को लें, विजन को, देखने की ताकत को, तो हम इसे इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो देखिए, 2 स्टेजेस ऑफ विजुअल परसेप्शन। अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारे दिमाग की परसेप्शन तक, दिमाग के समझ पहुंचने तक उसको हम कैसे बयान करें। तो वी हैव 2 स्टेजेस। नंबर 1, फिजिकल रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलस और स्टिमुलाई, इमेज ऑन रेटिना। यानी अगर मैं किसी एक दरख्त की तरफ देख रहा हूं तो उसकी तस्वीर का अक्स मेरी आंख के ऊपर पड़ रहा है, ये तो है पहली स्टेज। और फिर क्या है, यहाँ से सिग्नल्स जाएंगे दिमाग को, सेकंड स्टेज, और दिमाग में प्रोसेसिंग होगी, वो उसको देखेगा क्या चीज़ है, एंड इट विल इंटरप्रेट दैट स्टिमुलाई। वो उस तस्वीर को इंटरप्रेट करेगा, पैटर्न मैच करेगा। अगर मैंने पहले कभी कोई दरख्त देखा है तो आप मेरा दिमाग फ़ौरन मैच करके मुझे जवाब देगा कि अच्छा ये दरख्त है, ये कार है, ये मेरे ऑफिस की बिल्डिंग है। सो 2 स्टेजेस हैं। पहला ये कि उस अक्स का आंख पर पड़ना, एंड सेकंड वन कि हम उसको प्रोसेस करते हैं और उसका मतलब, इंटरप्रिटेशन क्या है, उसका मतलब निकालना, टू गेट सम मीनिंग आउट ऑफ इट। हु इज़ ही, व्हाट इज़ दैट। तो वो चीज़ हमारे दिमाग को पहुंचती है और वो इसको इंटरप्रेट करता है। ज़रा इसको देख लेते हैं। लुक, आई, हमारी आंख काम कैसे करती है। ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स द लाइट, ये आपने बचपन में पढ़ा है कि लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आती है। कोई भी चीज़ है उसके ऊपर जो लाइट पड़ रही है उसका रिफ्लेक्शन हमारी आंखों में आता है। आई रिसीव्स द लाइट, आई में वो लाइट आती है। इमेज इज फोकस्ड अपसाइड डाउन ऑन रेटिना। मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये देखिए, ये आपके पास एक इमेज था, इसकी जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो आंख से गुजरी, रेटिना पे जाके पड़ी, और वहाँ पर अपसाइड डाउन एक इमेज बन गया। सो वी हैड ए स्ट्रेट और normal object in front of us, but on the retina the image being made, or that formed image, is inverted image. So image is focused upside down on retina. Receptors in eye transform the image into electrical signals. So now, in fact, that image is converted into the electrical signals. हम सब जानते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर न्यूरॉन्स के थ्रू कम्युनिकेशन हो रही होती है। तो जब हमने उस इमेज को दिमाग तक भेजना है तो इनफैक्ट वो हमारे दिमाग में तस्वीर की फॉर्म में नहीं जाएगा, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में, यानी वो कन्वर्ट होगा और रिसेप्टर्स जिन्होंने उस तस्वीर को रिसीव किया है वो उसको कन्वर्ट करेंगे और उसको फिर दिमाग को भेजेंगे, एंड देन सिग्नल्स आर पास टू द ब्रेन, दिमाग तक पहुंच जाते हैं। अब ये देखिए, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखिए, ये आपका लेंस है जिसके थ्रू लाइट ने गुजरना है। सो व्हेन वी हैव एन ऑब्जेक्ट ओवर हियर एंड देन दैट लाइट गोज थ्रू दिस लेंस, इट फोकसेस ऑन दिस रेटिना। यहाँ पर कहीं पे ये फोकस होती है अपसाइड डाउन, एंड देन दीज आर द ऑप्टिक नर्व्स जो कि दिमाग के साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं। सो ये रेटिना पे जो भी इमेज बनेगा ये यहाँ से होता हुआ दिमाग तक जाएगा इलेक्ट्रिकल पल्सेस की फॉर्म में, यानी जिसको हम कहते हैं कि न्यूरॉन जो है वो इलेक्ट्रिकल पल्स के ज़रिए से डेटा को पास करता है, तो वो यहाँ से जाएगा दिमाग तक, और दिमाग जो है वो फिर इसको इंटरप्रेट करेगा, प्रोसेस करेगा कि मैं क्या चीज़ देख रहा हूँ। सो ये मैंने भी आपको बताया। नाउ
रेटिना कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर्स। ये सिंपल है, इसको आपने बहुत रटना नहीं है, बस समझ लें और जो मैं तरीका बताऊं उससे समझ लीजिएगा। देखिए याद रखिए, whenever we go from bright light to a room that is darker, we just feel like we cannot see anything inside it. So in fact in our eyes there are cells known as rods, right? इनको हम फोटो रिसेप्टर्स कहते हैं। लाइट को लेने वाले दो तरह के हमारे पास फोटो रिसेप्टर्स हैं, रॉड्स एंड कोन्स। तो रॉड क्या करता है, ये हमें हेल्प करता है लो लाइट में देखने के लिए। सो व्हेन वी एंटर इनटू अ डार्क रूम वी कैन नॉट सी फॉर fraction of a second or for 1 second or for 2 seconds, but then we start feeling like that okay I can see. And then the reason is these rods were inactive when you were in sun or when you were in the light, and when you came into that particular room, the dark room, in fact your eyes were not ready to watch. These rods were not active, so they took some time and they got activated and then you started looking. सुन लीजिए कि जब हम कभी एक रोशन जगह से एक अंधेरे कमरे में अंधेरी जगह पर जाते हैं तो हमें कुछ लम्हों के लिए लगता है कि हमें नज़र आना बंद हो गया, हमें नज़र नहीं आ रहा, और फिर थोड़ी सी देर के बाद हमें नज़र आना शुरू हो जाता है। तो हमारी आंखों में दो तरह के सेल्स हैं, रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स जो हैं ये मदद करते हैं हमें अंधेरे में देखने में। तो जब हम रोशनी में होते हैं तो रॉड्स बहुत मतलब वो एक्टिव नहीं होते हैं, वो नॉर्मल स्टेट में होते हैं, लेकिन जो ही हम अंधेरे में जाते हैं तो वो एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। और यही वो टाइम है कि हमें लगता है कि हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, और जैसे रॉड्स एक्टिव होते हैं हमें लगता है कि हाँ ठीक है मुझे नज़र आ रहा है। सो दिस इज समथिंग कि एक तरह के रिसेप्टर्स हैं। अल्लाह ताला की शान है दैट वी हैव 120 मिलियन रॉड्स पर आई। एक आपकी जो आंख है उसके अंदर 120 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख होता है, तो 120 ज़रब 10 आप इसको गिन लीजिए, इतने ये रिसेप्टर्स एक आंख में मौजूद हैं। नाउ आफ्टर द रॉड्स वी कम टूवर्ड्स द सेकेंड टाइप ऑफ फोटो रिसेप्टर्स, दैट इज कोन्स। इट हेल्प्स टू सी द कलर्स। देखिए हमें एक तस्वीर नज़र आ रही है, उसमें रंग ना हो तो डिफरेंट है, हमें ये तो अजीब सा है, क्योंकि पहले हम ब्लैक एंड वाइट टीवी वाले, हम लोग वो जनरेशन है who watch the TV in black and white form, right? So we can feel like, but अभी अगर आपको हम कहें तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि सर डिफरेंट है ये। So cones are there that help to see the colors. We can differentiate between colors and we can look a real image. So there are 3 type of cones, and in fact 6 million cones per eye concentrated. 6 into 10, right? तो अब आप समझ लीजिए इतने लाख, तो 60 लाख कोन्स एक आई में कंसंट्रेटेड है। तो मैं अब जो रट्टा लगाने के लिए बोलता हूँ, ये नहीं ज़रूरी नहीं है कि आप रट्टा ही लगाएं, लेकिन कभी कभी टर्मिनोलॉजीज मिक्स हो जाती हैं। वैसे तो बहुत आसान सी बात है, रॉड जो है ये आपको डिम लाइट में या नो लाइट में या अंधेरे में देखने में मदद करता है, और कोन्स जो है कलर। लेकिन जब मैं कभी कहता हूँ अगर आप भूल रहे हों और आपको थोड़ा सा एक हिंट चाहिए हो तो याद रखिए C फॉर कोन एंड C फॉर कलर। तो आपको याद रहेगा कि अगर C यानी कोन इज फॉर द कलर, देन द अदर थिंग रॉड इज फॉर द नाइट विजन। ठीक है, तो ये आपके पास दो चीजें हैं। अब क्या है, जो हमारी आंख के अंदर रेटिना है, इट हैज ऑल्सो स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स। इसके अंदर और सेल्स भी मौजूद हैं कॉल्ड गैंगोलियन सेल्स। दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, X cell and Y cell. X cell detects the pattern, the shape of that thing. फॉर एग्जाम्पल अगर एक बॉल है वो मुझे गोल नज़र आ रही है, अगर फ्रीस्बी है तो वो मुझे चपटी सी नज़र आ रही है, अगर शटल है तो उसकी अपनी शक्ल है। तो लिहाजा हो क्या रहा होता है, ये एक्स सेल हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को समझाता है। वी कैन जस्ट कंसिडर द शेप ऑफ द थिंग्स विद द हेल्प ऑफ द एक्स सेल्स, and then if that thing is moving, then Y cells help to detect the movement कि जनाब ये बॉल कितनी रफ्तार से आ रही है, गाड़ी कितनी रफ्तार से जा रही है, कोई और चीज़ मेरी तरफ बढ़ रही है या किसी दूसरी तरफ जा रही है तो उसकी स्पीड कितनी है। So these are in fact Y cells that detect the movement. अच्छा, अभी now we have only started something that is little bit
रिलेटेड टू द बायोलॉजी. सो ये आई रेटिना और ये दो स्लाइड्स जो है सिर्फ ये हैं. बाकी अब आप देखिए आपके कंप्यूटर साइंस के साथ ये रिलेट कैसे होता है. विजुअल परसेप्शन, याद रखिएगा, our brain is very good with the images, with the patterns, ये ख्याल रखिएगा. तो इसीलिए हमेशा कहते हैं कि अगर छोटे बच्चों को पढ़ाना हो तो उनको तस्वीरों के साथ पढ़ाना शुरू करें. बाद में टेक्स्ट वो पढ़ लेंगे, यकीनन वो भी उनके दिमाग में होता है, इट इज़ ऑलवेज देयर, बट इट इज़ बेटर टू स्टार्ट विद द इमेजेस, ताकि वो बच्चे के दिमाग में सेव जल्दी होता है, इंसान के दिमाग में सेव जल्दी होता है. सो नाउ चेक, दिस इज़ अवर ब्रेन. And in fact, we can check this maroon part or maroon area is telling us that the brain is containing this much visual data, and these gray images or gray part tells us the textual data. So now the research tells almost 90% of information transmitted to the brain is visual. हमें जो तस्वीरें हैं ना, जो हमें इमेजेस हैं, हम सड़क पे जा रहे हैं वो इमेज है, हम यूनिवर्सिटी में हैं वो इमेज है, हम कोई तस्वीर देख रहे हैं वो इमेज है, हमें कोई ग्राफ दिखाया जा रहा है, तो ये ज़्यादा तेज़ी से दिमाग में और ज़्यादा आसानी से दिमाग में स्टोर्ड होते हैं. तो लिहाजा इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट इन फैक्ट द विजुअल इंफॉर्मेशन हैज़ ऑलमोस्ट 90% ऑफ आवर मेमोरी, and in fact these are processed 60,000 times faster than the text. इमेज फौरन आपको देखें, जो टेक्स्ट आपने देखा है ना वो आपको थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इमेज जो है ना इसको रिट्रीव करना, यू विल हैव टू रिकॉल व्हाट वाज दैट, तो यू कैन डू दैट इन फ्रैक्शन ऑफ अ मिनट, यानी एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड. आप लम्हे में पहचानते हैं हाँ ये मेरी दोस्त है, ये मेरा दोस्त है. आप लम्हे में पहचानते हैं हाँ ये मेरी गाड़ी है. यानी तस्वीर, दैट इमेज इज प्रोसेस सो फास्ट. सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है विजुअल परसेप्शन में, एंड दैट इज वाई वी कंसिडर इट इन द HCI. इनफैक्ट योर GUI, योर सॉफ्टवेयर इंटरफेस इनफैक्ट मैटर्स अ लॉट. बहुत अहम है कि आपके यूज़र को ऑप्शंस याद रहें, उसको बार बार देखना ना पड़े ये ऑप्शन कहाँ है. तो हम उसको ऐसा ही इंटरफेस बना कर दें जो कि उसके लिए कॉग्निशन के तहत, इस्तेमाल के तहत, एक्सपीरियंस के तहत भी आसान लगे और जो उसके दिमाग और आँखों के लिए भी आसान हो जाए. अब ज़रा मैं आपसे बात करूँगा, आई विल टॉक अबाउट द विजुअल परसेप्शन इन टर्म्स ऑफ, बल्कि मैं टर्मिनोलॉजी नहीं बोलना चाहता ताकि अभी आप वो हों. आप इसको एक लम्हे को देखिए and try to understand that which line out of these two is longer, right? And because I'm just recording, I'm not getting your answers right now, so let me explain. It looks like that this line is longer, ये लंबी line है, सर ये छोटी है, but it is not. And in fact this is the problem of illusion. हमें इस वक्त दिमाग जो है ना वो इल्यूजन दे रहा है, हमें धोखा दे रहा है. इसलिए मैंने कहा था कि मैं टर्मिनोलॉजी नहीं बोल रहा, आई विल नॉट टॉक दैट इल्यूजन. विजुअल परसेप्शन इल्यूजन, कभी कभी हमें इल्यूजन्स होते हैं. एक चीज़ उस जगह मैं आपको मिसाल देता हूँ. यू ऑल वुड हैव हर्ड अबाउट कि जब हम सहरा में जाते हैं तो वहाँ पर कहीं पर पानी नहीं होता और हमें लगता है कि वहाँ पानी है, हम उसे कहते हैं शराब है, यानी ये है नहीं और ये हमें नज़र आ रहा है. तो हमारा दिमाग हमें फॉल्स परसेप्शंस देता है. अगर आप कभी इफ़ यू आर मूविंग इन अ कार ऑन अ रोड एंड ऑलमोस्ट 200 meters away or 300 meters away in hot summer daytime, you feel like that there is some water on the road, and when you reach that place you find that there is no water. In fact again that is the illusion. हम इसको पढ़ेंगे, we will study it in detail. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि परसेप्शन में कभी कभी दिमाग धोखा खा जाता है. लाइक ओवर हेयर वी कैन जस्ट सी लाइक कि यार ये चीज़ बड़ी है, और लेकिन क्यों, मैं आपको वजह भी बता देता हूँ. These two lines, ये जो रेलवे लाइन है ना, ये लाइंस जा रही हैं, these are giving us a false impression. ये इल्यूजन बनाने में मदद कर रही हैं. तो लिहाजा इसकी वजह से दिमाग को थोड़ा सा confusion आती है. Same is here. If I ask what is this, few of you would say, sir, this is in fact an image of two faces. If they are more towards looking at the black side, अगर वो इस इमेज को देख रहे हैं तो उनको एक चेहरा दूसरा चेहरा नज़र आ रहा है. अदरवाइज
The other students may tell me, sir, in fact this is a wine glass. ये एक ग्लास है, एक हाँ ग्लास है जिसमें हम पानी शरबत वगैरह पीते हैं, और अदरवाइज इट इज़ अ वाइन ग्लास. सो in fact this is again visual perception in which part or on which part our brain is more focused. हमारा दिमाग किस तरफ इसको देख रहा है, किस रंग पर उसका ज़्यादा वो है, तो उस तरह से हमें ये नज़र आएगा. तो यहाँ तक अभी हमने जो बात की, मैं एक लम्हे में इसको सिर्फ सम अप कर दूँ. हमने बात ये की है कि इंसान एक ह्यूमन है जो कि इनपुट लेता है, डेटा को प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट देता है. फिर इंसान के कुछ चैनल्स हैं इनपुट आउटपुट के, वो डेटा को इनपुट लेने के बाद प्रोसेस करने के बाद आउटपुट करता है. हमारे कुछ चैनल्स हैं जिनमें से 3 को हमने बहुत ज़्यादा अहम कहा. फिर हमने विजुअल परसेप्शन का कहा कि आँख के ऊपर लाइट पड़ती है, फिर दिमाग तक जाती है तो वहाँ पर प्रोसेस और इंटरप्रेट होता है. आई जो है ये इनफैक्ट हमारा वो इनपुट चैनल है जो लाइट लेता है, तस्वीर बनाता है, फिर तस्वीर को दिमाग को भेजता है. और फिर हमने आई का स्ट्रक्चर हल्का सा देखा, हमने इमेज को देखा वो कैसे इन्वर्ट हो जाता है. हमने 2 ऐसे कॉन्सेप्ट्स पढ़े जो कि हमें याद दिलाते हैं 9th-10th क्लास की बायोलॉजी की, कि जनाब रॉड्स होती हैं, कोन्स होती हैं. मैंने आपको बताया कि रॉड्स अंधेरे में देखने के काम आती हैं और कोन्स जो हैं वो कलर्स को देखने के. हम जो उर्दू मीडियम बच्चे हैं उनके लिए रट्टे के लिए एक और आसान चीज़ है कि रॉड और रात दोनों आर से है. तो ये बड़ा फूलिश सी स्टेटमेंट, लेकिन याद रखिए आप लोग हमेशा कुछ हेडिंग्स के पहले करेक्टर्स जमा करते हैं, उनका एक अजीब सा लफ्ज़ बनाते हैं, रट्टा लगा के चले जाते हैं और जाते ही आंसर शीट पे वो अजीब सा लफ्ज़ लिख के उसकी हेडिंग्स बना लेते हैं. तो मैं भी यहाँ पर आपको कह रहा हूँ कि सी फॉर कोन, सी फॉर कलर्स, और एक फुलिश स्टेटमेंट दे रहा हूँ आर फॉर रॉड्स एंड आर फॉर रात. तो ये आपके रट्टे के लिए, अदरवाइज आपको कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए. देन रेटिना, मैंने आपसे कहा था एक्स सेल जो है ये आपको उस ऑब्जेक्ट की शेप बताता है, वाई सेल जो है उसकी मूवमेंट के बारे में बताता है कि वो किस तरफ चल रहा है, कितनी स्पीड से चल रहा है. तो इसी की वजह से दिमाग प्रोसेस करके हमें रिएक्ट करने के लिए बोलता है. विजुअल परसेप्शन के बारे में मैंने आपको बताया कि दिमाग इमेजेस की फॉर्म में चीज़ों को ज़्यादा रख रहा होता है और वो उसको 60,000 गुना टेक्स्ट की निस्बत 60,000 गुना तेज़ी से प्रोसेस करता है. मैंने आपको इल्यूजन के बारे में बताया कि बाज़-औक़ात हमारा दिमाग चीज़ों को सही इंटरप्रेट नहीं करता. ये दोनों लाइंस एग्जैक्टली बराबर हैं, एग्जैक्टली बराबर हैं. अगर आप इसका फुट रख लें ना, या कोई स्ट्रेट चीज़ रख लें तो आपको चलेगा कि यार ये तो बिल्कुल गलत है. तो असल में कभी कभी दिमाग हमें वो नहीं दिखा रहा होता जो होता है, वो हमें गलत परसेप्शन दे रहा होता है. इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, राइट. अब आ जाइए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, दैट इज विजुअल परसेप्शन. दैट मीन्स हाउ वी परसीव द साइज ऑफ अ थिंग, द डिस्टेंस और डेप्थ ऑफ द थिंग, brightness and color of that thing. So in fact these are very important whenever we are making our interface. We want to show something, for example in a game we want to show that we have a rock in front of us, then there is a person behind that rock. So we want to give you a hint that that person is far away, but screen is 2D, so we will have to give you some image or some perception that the person is far away and you have a distance between you and him, and when you can fire at him, so it is different. So now let's check how we perceive the size and the distance, right, and the depth. Size. The size of an image is specified as a visual angle. Visual angle is affected by size and distance. Now check. How do we check the size? In fact, on our eye, whenever there is an object, check, this arrow is an object. In fact, its top and its bottom, these 2 points in fact make 2 lines that just touch our retina, and there it make an angle of theta. In fact, this is known as visual angle. If this object is big, then this theta would be big. If this object is small, this theta would be small. So now you may check that in fact the eye can get this image
and that image size will depend upon this visual angle. So now in Urdu, देखिए बेटा, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चीज़ है, तो हम उस चीज़ के टॉप और उस चीज़ के बॉटम कोई लाइंस को एक्सटेंड करेंगे आंख तक, रेटिना तक, और रेटिना के साथ जो ये एंगल बनाएगा वो एंगल थीटा कहलाता है, जिसको हम विजुअल, कोई भी एंगल है, आप थीटा कह रहे हैं कुछ भी, उसको हम विजुअल एंगल कहते हैं। अगर ये चीज़ बड़ी है तो ये थीटा भी बड़ा होगा, यानी हम कहेंगे यार क्योंकि ये एंगल बड़ा बन रहा है इसका मतलब है ऑब्जेक्ट बड़ी है। और अगर ऑब्जेक्ट छोटी होती, यहाँ तक होती और यहाँ से लाइन यूं ड्रॉ करते हम, तो वो यहाँ पे थीटा इतना सा बनता। तो ये जो विजुअल एंगल है, इनफैक्ट ये हमारी आंख पे जब बनती है तस्वीर, तो अगर ये विजुअल एंगल छोटा बन रहा होगा तो हमारे दिमाग पे जाता है कि जनाब ये तस्वीर या ये चीज़ छोटी है, और अगर ये थीटा या विजुअल एंगल बढ़ा जाता है तो फिर हमारे दिमाग को ये इंप्रेशन मिलता है, वो ये इंटरप्रेट करता है कि चीज़ भी बड़ी है। नाउ चेक, हमने अभी एक बात बोली थी यहाँ पे कि विजुअल एंगल इज अफेक्टेड बाय साइज एंड द डिस्टेंस। नाउ चेक, objects of the same size at different distances have different visual angle. Now check, ये देखिए, we have a big person over here and a small kid over here, right? But if we change their position, like if the big person is away, then the angle, visual angle of his height would be equal to the height of a kid that is closer to the eye, जो कि आंख से करीब है। तो लिहाजा दोनों का एंगल एक बनेगा। अब दिमाग सोचता है कि यार ये इसका साइज क्या है, दैट इट देन गोज फॉर द डिस्टेंस, उसकी भी हम बात करते हैं। एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ डिफरेंट डिस्टेंस, ये देखिए डिफरेंट साइज के ऑब्जेक्ट हैं। छोटा बच्चा अगर करीब है तो उसका विजुअल एंगल भी वही बन रहा है, बड़ा बंदा अगर दूर है तो मुमकिन है उसका विजुअल एंगल भी एक ही बन रहा हो। तो लिहाजा अब इसके बाद गेम आएगी डिस्टेंस की, और ये हमारा बिल्कुल सिंपल वाली ऑब्जेक्ट थी कि ये ऑब्जेक्ट है और ये जहाँ पर है उसका ये विजुअल एंगल बन रहा है। और ये हमने प्रूफ किया कि अगर मैं एक बात करता हूँ कि अगर एक बड़ी बिल्डिंग, 5 मंजिला बिल्डिंग हमसे दूर है या 4 मंजिला बिल्डिंग हमसे दूर है, तो मुमकिन है जो उसका एंगल बन रहा हो वो एक ऐसी बिल्डिंग के बराबर बन रहा हो जो कि 2 मंजिला हो। सो अ बिल्डिंग विथ 4 फ्लोर्स कैन हैव अ विजुअल एंगल equal to a building of 2 floors. So this is something that can give some perception of size to our eyes. But now we will have to define how that size will be measured or interpreted by our brain. Now the next thing is visual acuity, ability of a person to perceive fine details. Now you may see that sometime when we have eyesight issue, then we go to some eye specialist and they just test our eye by giving us a chart, and then we sit a little bit away from that chart and he asks us what we can see or what we can read. If it is A, B, C, D, then we can read. If those are arrows, then we can see. So what we can see or read in that chart. And there are levels, a big A, B, C, D or something, or then the second line little bit smaller, then little bit smaller, and then a thinner one. So they ask us till which line you can read. So this is visual acuity, how much clear I can see which line. So if my eyes are 6 by 6 are perfect, then I would read the smallest line, the thinnest line, right? But if my eyes are not good enough, maybe my eyesight is weak, then maybe I would be able to see till the third line or the second line. I'll not be able to look at the last line, the thinnest line. So this is known as visual acuity, how clearly you can see a thing. उर्दू में जल्दी से समझ लेते हैं विजुअल एक्विटी क्या है। किसी भी इंसान की खासियत कि वो किसी चीज़ को कितना साफ देख सकता है, बारीक चीज़ को।
तो ये क्या है, एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू परसीव फाइन डिटेल्स। आप समझ लीजिए, मैं इसकी मिसाल यूं दिया करता हूँ, जब हम लोग, अब तो ज़माना नहीं रहा, हम टीवी के आगे बैठ जाते हैं, अदरवाइज चांद रात पे जब हम छोटे होते थे, आज से 30-35 साल पहले, तो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, हमें बड़ी खुशी होती थी, सब बच्चे जमा होके छत पे, और हम सब जाके चांद देखा करते थे कि जी, और शोर मचाया करते थे। अब तो अजीब सी चांद रातें हैं, समझ नहीं आती। लेकिन उस वक्त क्या था कि जो हमारे बुजुर्ग भी हमारे साथ जाते थे, नानियाँ, दादियाँ, अम्मी, अब्बू वगैरह जो भी होते थे घर पे, और वो सब जाके चांद बस हम मगरिब की नमाज़ पढ़ते थे, हाँ हम अफ्तार करते थे, नमाज़ पढ़ते, भागते हुए चले जाते थे, वो भी आ जाते थे कि चलो जी ठीक है। और फिर जो बुजुर्ग होते थे ना, उनको चांद नज़र नहीं आ रहा होता था, और वाकई नहीं आता था, उनकी आई साइट्स वीक होती थी, क्योंकि उनकी विजुअल एक्विटी का इशू होता था। वो बारीक थे जो उनकी थिन डिटेल्स थी, उनको देख नहीं पाते थे। ऐनक लगा रहे हैं, फिर हम उन्हें बता रहे हैं, नानो यहाँ देखें, दादो यहाँ देखें, इस तरफ है, नहीं इस तरफ है। तो दैट वाज द विजुअल एक्विटी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब हम लोग अपने यूज़र को, वी गिव द फॉन्ट्स टू द यूज़र ऑन अ स्क्रीन, सम टाइम यू विल फाइंड मैनी websites or the applications that have very small fonts on it, और आप कहते हैं पढ़ना मुश्किल हो रहा है, I cannot read it out. So in fact that is the reason कि आपको ख्याल रखना है विजुअल एक्विटी का. यू विल हैव टू कंसिडर अ नॉर्मल पर्सन, मे बी ही हैज़ सम आई साइट इशू और ही मे नॉट बी एबल टू रीड प्रॉपरली. सो आपने क्या करना है, अपने फॉन्ट साइज को इतना कम अज़ कम प्रॉपर रखना है कि दोज मस्ट बी रीडेबल. और इसीलिए हम विजुअल एक्विटी को पढ़ भी रहे हैं. क्यों? बिकॉज अ पर्सन विद नॉर्मल विजन कैन डिटेक्ट अ सिंगल लाइन if it has a visual angle of 0.5 second of an hour. ये बड़े मज़े की बात है, और ये भी मैं कहता हूँ खुदा की शान है कि अगर आप यू गो टू ज्योमेट्री एंड ट्राई टू recall 1 degree is so small कि जो 30 डिग्री का एंगल है वो बहुत मुन्ना सा होता है. Then if you divide that 30 degree, then you have only 1 degree. And if I ask you, you divide that 1 degree into 60 parts, then 1 part of that degree will be 1 minute. यानी इतना बारीक. And then I ask you to divide that 1 minute into 60 parts, then it would be 1 second. और उसका आधा 0.5 सेकेंड है. नाउ यू विल रियलाइज कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी शानदार आई साइट, कितनी शानदार ताकत दी है, दैट वी कैन, अ नॉर्मल पर्सन कैन, जिसकी आई साइट वीक नहीं है, he can detect a single line of 0.5 second of art. But मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, do not try the eyesight, right? In your websites, in your softwares, in your web application or the mobile application, please use the proper fonts. बड़े बड़े जिन भी ना बना दीजिए, but those must not be that much small कि उनकी आई साइट टेस्ट हो रही हो. उनको थकाना नहीं है, ना बहुत बड़े फॉन्ट ना बहुत छोटे. ये आपको प्रैक्टिस से आ जाता है. बनाते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, बनाते हैं, देखते हैं, चेंज करते हैं, और फिर आप कहते हैं हाँ यार परफेक्ट हो गया. सो दैट इज़ द थिंग, राइट? सो ये हमारी लिमिट है ह्यूमन विजुअल एक्विटी की. वी मस्ट नॉट प्ले विद इट. तो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कोशिश करें, और ये आप याद भी रखिएगा कि जो आपका फॉन्ट साइज नॉर्मल पढ़ने के लिए हो वो कम अज़ कम 11-12 हो. उससे छोटा मत करें, क्योंकि वो डिफ़िकल्ट हो जाता है रीड करना इंसान के लिए. ठीक है? सो दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट how we read. So now this is something, that chart in which doctors ask us कि आप पढ़ना शुरू कीजिए. Start reading 1, 2, 3 and maybe I can read because मेरी करीब की नज़र जो है वो थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन अगर मुझे दूर से वो दिखा रहे होंगे तो मैं बिल्कुल ये नहीं देख पाऊंगा कोई भी ये आखिरी 3-4 लाइनें. और दे जस्ट आस्क मी टू पुट ग्लासेस, तो मैं बचपन से ग्लासेस लगा रहा हूँ. ठीक है? तो ये है जो वो चेक करते हैं. अब देखिए एक चीज, वी सेड दैट दिस इज अ पर्सन एंड दिस इज अ किड, एंड नाउ अवर ब्रेन नोज दैट what is the size, what is the height, what is the length of some object. कोई बिल्डिंग है, कोई कार है, कोई क्या कहते हैं बस है, दिमाग जानता है. सो इफ आई आस्क यू that you watch your friend and he or she is standing, for example, in the parking 50 meters away from you. So if I ask you how high or what will be his or her height, your brain will get, your eye will get.
यू विल सिंपली टेल मी सर बहुत मुन्ना सा, इट इज सो स्मॉल सर, इतने दूर से तो इतना सही नजर आएगा. बट देन आई आस्क यू डू यू थिंक ही और शी इज दैट स्मॉल, तो आप हंस पड़े, यू विल जस्ट लाफ. सर मजाक कर रहे हैं, वो 5 फुट 8 इंच का बंदा है और आप कह रहे हैं कि वो इतना सा है, एक चुटकी के बराबर. yes, this is something important, that we have a law of size constancy. This is a concept that says that even if a thing is closer to us or far away, our brain knows its size. If I ask you to look at the Faisal Masjid from 0 point, it looks like tiny one. But you know what? You simply tell me, नहीं नहीं सर ये बहुत बड़ी है, ह्यूज है, जब यहाँ जाएंगे तो पता चलेगा. We look at a mountain far away, right? And it is just looks like 2-inch mountain. But when we look at it, our brain says no 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 no. आप पूरा दिन भी चले ना तो आप इसकी पीक पर नहीं जा सकते, ये बहुत बड़ी है, आप बहुत दूर खड़े हुए हैं. So now check. Size of an object is perceived एज कॉन्स्टेंट. ये आपके दिमाग को बता रही होती है कि नहीं ये बंदा छोटा नहीं है, इट इज़ नॉट दैट स्मॉल, ये बंदा या बंदी इतना बड़ा है, ये फैसल मस्जिद इतनी बड़ी है, इवन इफ इट इज़ क्लोजर और फार अवे. बेशक ये हमसे करीब हो या दूर, हमारे दिमाग में स्टोर हुआ होता है. इट इज़ स्टोर्ड समवेयर इन द ब्रेन दैट इट हैज़ दिस कॉन्स्टेंट साइज. मैं आपसे मिसाल देता हूँ. दोज किड्स, और देखो इसमें एक चीज़ मैं बाद में पढ़ाऊंगा, उसको भी आपने ख्याल रखना है. दोज किड्स हु हैव सीन द एरोप्लेन और दे हैव ट्रेवल्ड इन द एरोप्लेन और दे हैव सीन इट फ्रॉम अ क्लोजर डिस्टेंस, दे नो इट्स साइज. एंड व्हेन देन प्लेन इज फ्लाइंग हाई, कई हजार फुट पे वो जा रहा है, एंड इट लुक्स लाइक अ टाइनी ऑब्जेक्ट, अवर ब्रेन सेज नो 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 नो, इट इज जम्बो, इट इज बिग, इट इज ह्यूज. तो देखो ये है लॉ ऑफ साइज कॉन्स्टेंसी. जो चीज़ करीब हो या दूर हो, वो हमारे दिमाग के अंदर उसके साइज को कांस्टेंट रखता है. लाइक इफ आई से दैट लुक एट दैट ट्री ऑन द टॉप ऑफ दैट पीक ऑफ मारगला, आप मारगला की तरफ देखिए और उसके ऊपर जो एक दरख्त नज़र आ रहा है उसको देखें, मेरे ख्याल में ये दरख्त 2 फुट का होगा, 3 फुट का होगा. तो यू विल ऑल स्टार्ट लाफिंग कि सर क्या मजाक कर रहे हैं, इतना बड़ा पहाड़ है और हमें इतने दूर से एक दरख्त भी उसके ऊपर नज़र आ रहा है. सर हाउ इज़ इट पॉसिबल कि ये 2 फुट का हो, अगर ये 2 फुट का होता ये हमें कभी नज़र ना आता. इतने जाइंट, तो देखें क्या है, आपके दिमाग ने कहीं पे साइज को कांस्टेंट करके रखा हुआ है, बिकॉज यू हैव सीन द ट्रीज इन योर नॉर्मल लाइफ, एंड नाउ यू कैन इमेजिन इतने बड़े पहाड़ पे जो इतने दूर है, वो दरख्त एक ह्यूज दरख्त होगा, वरना शायद हमें नज़र भी ना आता. वहाँ पे जो छोटी मोटी झाड़ियाँ और दरख्त उगे हुए हैं वो हमारी आंखों को नहीं फील हो रहे. तो दिस इज़ लॉ ऑफ साइज कॉन्स्टेंसी. अब समझते हैं नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट इनफैक्ट दिस साइज कॉन्स्टेंसी लॉ. ये कैसे हमारे जहन को इशारा मिलता है कि इसका साइज है क्या. जो आपसे बताऊं, व्हेन यू मेक द गेम्स, ताकि हम कंप्यूटर से रिलेट करते जाएंगे तो हमें पढ़ने में भी मज़ा आएगा. व्हेन वी मेक अ गेम एंड वी वांट टू शो यू द एनिमी, बट you know that the weapon you have now will be effective if that thing is in the range. That tank, that enemy, that soldier, anybody, जो भी हमारे पास उस गेम में है, जिससे जो भी हम खेल रहे हैं, an aeroplane, anything, तो वो जब तक हमारी रेंज में इतने फासले पर नहीं आएगा, वी मस्ट नॉट फायर, बेकार हो जाएगा हमारा वेपन, हमारा जो ये क्या कहते हैं इसको उर्दू में यार, जो हथियार है, ये ज़ाया हो जाएगा. तो क्या होना है, देखिए, चेक कीजिए. वी लुक एट इट, इन फैक्ट वी आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट दैट इज अ टैंक, that must be huge, but it is looking smaller. That means it is far 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 away, and when it comes closer, you just get on your screen that it is getting bigger, ये बड़ा होता जा रहा है. And when it comes to a certain डिस्टेंस, जहाँ पर आपको पता है कि आपका वेपन काम करेगा, आप यहाँ से फायर करते हैं और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. तो अब नोट कीजिएगा कि फैक्टर्स क्या हैं. डेप्थ डिस्क्राइब्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स. पहली चीज़, हमें जो उस चीज़ का डिस्टेंस है ना, वो हमें हिंट देना शुरू करता है कि ये दूर है, इट इज़ फार अवे. डेप्थ है, गहराई है, और गहराई कैसे दिखाएंगे, हाउ विल यू शो दैट डेप्थ ऑन द 2D, यानी 2D में क्या है, हम Z एक्सिस पर तो देख ही नहीं रहे.
वी कैन नॉट सी दैट कि उस तरफ तो हम कोई चीज़ नहीं दिखा रहे ना, हम एक्स और वाई पे दिखा रहे हैं। तो व्हाट हैपन्स देन, इन फैक्ट वी पुट द क्यूज, क्यू का क्या मतलब है, हम हिंट देना शुरू करते हैं। हम बीच में एक पत्थर रख देते हैं बड़ा सा, फिर उसके पीछे एक दरख्त बना देते हैं, फिर उसके पीछे हम कुछ झाड़ियाँ सी बड़ी बड़ी सी लगा देते हैं। तो हमें हिंट मिलना शुरू हो जाते हैं कि अच्छा मेरे करीब एक बड़ा सा पत्थर है, फिर एक बड़ा सा दरख्त उसके पीछे है, फिर उसके पीछे कुछ और दरख्त हैं, उसके पीछे एनिमी है। तो मैं जेड एक्सिस के ऊपर डेप्थ दिखाना शुरू करता हूँ। मैं जान के इसको कंप्यूटर से रिलेट कर रहा हूँ बेटा, कि अगर हम इसको सिर्फ इसी तरह थ्योरेटिकल पढ़ते रहे तो ना पढ़ने का मजा आएगा ना इसका यूजेज। तो आपने अब गौर करना है कि देखो कंप्यूटर गेम्स में लगता है कि जनाब जहाज उड़ता हुआ आ रहा है, दूर है, तो हम उसको कैसे नोट करते हैं, पहाड़ों के पास से गुजर रहा है। अब वो किसी बिल्डिंग को क्रॉस करना शुरू हुआ, अब वो हमारी रेंज में आया है। सो नाउ चेक, व्हेन वी वॉच अ थिंग वी फाइंड डिफरेंट क्यूज। अब जरा देखना क्यूज क्या क्या है, क्या हिंट्स मिल रहे होते हैं। नंबर वन, relative position of the object and distance gives hints about the size of an object। जो मैंने अभी आपसे बात की अभी अभी कि जनाब हमारे सामने हिंट्स हैं, क्लूज हैं। हमें उसने एक क्लू जो दिया है वो हमें उसकी डेप्थ का दिया है कि मेरे आगे रॉक है, फिर पहाड़, फिर कोई दरख्त है, फिर कुछ और है, फिर कोई बिल्डिंग है, उसके पीछे से जहाज आ रहा है। अब अगर मैं आपको इसकी एक मिसाल दूं तो ये है बड़ा क्लियर। देखो बेटा, अगर मैं आपसे कहूं कि दिस इज समथिंग, द umbrella and these people, and I say that, मैं एक फुलिश सी स्टेटमेंट झाड़ता हूँ कि देखिए इनफैक्ट दीज गाइज आर बिग एंड दीज आर किड्स। तो आप एकदम से मुझे ना निगेट कर देंगे, मुझे क्या करेंगे, मनफी, मुझे मना कर देंगे कि नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं। क्यों भाई, देखो ये छोटी छोटी सी छतरियां हैं और ये छोटे छोटे से लोग हैं, बच्चे हैं। यू विल से नो सर, इनफैक्ट ये रिलेटिव पोजीशन देखें, ये हमसे करीब है, हमारे पीछे एक ये खंबा ऊंचा सा नजर आ रहा है, फिर हमें एक ये शख्स नजर आ रहा है, फिर हमें यहाँ पे कोई एक ये कार्ट नजर आ रही है, शायद ये कोई घोड़ा गाड़ी वगैरह है, और सर उनके पास ये लोग मौजूद हैं। तो हमें हिंट मिलना शुरू हो रहा है कि सर ये लोग भी इन्हीं के तकरीबन बराबर हैं, अम्ब्रेला साइज भी तकरीबन एक ही है। सर यू कैन नॉट से दैट कि ये लोग जो हैं इनके साइज फ़र्क हैं, ये कांस्टेंट साइज हमें मिल रहा है कि इतने ही करीब करीब चंद इंच के फ़र्क के साथ ये लोग बराबर हैं, इन्हीं के बराबर ये लोग भी हैं, इन्हीं के बराबर ये पीछे वाले लोग भी हैं। सर ये बिल्डिंग बहुत बड़ी लग रही है। सर आप कह रहे हैं यार ये तो छोटी सी बिल्डिंग है। नहीं सर, अगर इसके 4 फ्लोर हैं तो आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। सर ये इस बिल्डिंग से भी शायद बड़ी बिल्डिंग होगी, लेकिन क्योंकि डिस्टेंस पर है सो वी आर फीलिंग लाइक इट इज स्मॉल बट इट इज नॉट। तो पहला आप हिंट देख लीजिए, रिलेटिव पोजीशन। और दूसरा फिर क्या है, साइज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब एक चीज और मजे की, ये देखो, ये जो हाइट और साइज हमें नजर आ रहा है ना, ये भी हमें, अगर देखो छोटी बिल्डिंग होती तो हमें इतना सा साइज दिखाती, वी वुड हैव ओनली दिस वन फ्लोर बिल्डिंग, सो इट वुड हैव अ स्मॉलर साइज इन अवर आई एंड वी वुड हैव सेड कि हाँ इट इज बिग इनफ, लेकिन ये एक छोटी बिल्डिंग है जिसकी एक मंजिल है। लेकिन अब व्हेन वी लुक एट दिस, इट इज बिग एंड दिस साइज, दिस हाइट टेल्स अस कि यार एक तो डिस्टेंस भी इतना ज्यादा है, फिर ये नजर भी बड़ी आ रही है, इसका मतलब है ये वाकई अच्छी खासी बड़ी बिल्डिंग होगी। सो नाउ चेक, 2 चीजें हो गई, साइज एंड हाइट, एंड थर्ड इज फेमिलियरिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब ये क्या चीज है, देखो बेटा, मैंने अभी बात की जहाज की और मैंने जान के एक लफ्ज बोला, फर्ज करो मैंने कभी जहाज देखा ही नहीं, मैं फेमिलियर ही नहीं हूं, तो फिर मुझे उसके साइज को कांस्टेंट फील करने में जरा मुश्किल होगी। लेकिन अगर मैंने जहाज देखा है और मैं जब उसको आसमान पर उड़ते हुए देखता हूं तो आई एम फेमिलियर विद इट्स एक्चुअल साइज। मुझे पता है कि जहाज यार इतना मुन्ना सा नहीं होता है, बहुत बड़ा जिन है, और जब ये इतने दूर से भी मुझे नजर आ रहा है इसका मतलब है जिन बहुत ही बड़ा है। तो दैट मीन्स कि वो जहाज जो है, इनफैक्ट अगर मैं फेमिलियर हूं देन इट इज एक्सीलेंट, आई कैन गेट द एग्जैक्ट साइज ऑफ दैट एरोप्लेन। बट इफ आई हैव नॉट सीन दैट, मैं आपसे एक मिसाल चलो एक और देता हूं। हम यूं सोचते हैं कि एक शख्स है जिसने कभी कोई गाड़ी देखी नहीं। अब तो मतलब ये मीडिया का दौर है, तो वरना अदरवाइज आज से 10-15 साल पहले जब हम किसी इलाके में जाते थे कोई काम करने या कोई किसी सैलाब ज़दा इलाके में कहीं पे, तो आप यकीन कीजिए कि वो लोग खड़े होकर गाड़ियां देखते थे, बच्चे ना, यानी उनके लिए बड़ा एक अजूबा था कि गाड़ियां आई हैं और ये हुआ है और बस आई है, और तो उन लोगों के लिए। अब वो क्योंकि मीडिया पे सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन अगर हम फर्ज करें कि एक बच्चे ने कभी एक गाड़ी देखी ही नहीं,
तो अगर वो उसको दूर से देखेगा तो वो इमेजिन नहीं कर पाएगा ये बस कितनी बड़ी है, इस बस की लंबाई कितनी है, उसके जहन में एक इमेज नहीं बन रहा होगा until and unless he gets familiar। अगर वो उस बस को एक दफ़ा करीब से देख ले, अब आप बस को दूर खड़ा कर दें तो वो हंस के आपको बताएगा कि नहीं जी ये बड़ी चीज़ है, ये इतनी छोटी नहीं है, और क्योंकि ये दूर है। तो लिहाजा दीज आर द थ्री थिंग्स। नंबर वन कि वो हमसे कितनी दूरी पर है, फिर जो हमारी आंख पे उसका साइज़ बन रहा है वो छोटा है या बड़ा है, और तीसरा हम उससे फेमिलियर कितना है। अगर ये तीन चीज़ें हमें समझ में आ जाएं तो हमारा दिमाग हमें उस चीज़ के साइज़ को कांस्टेंट दिखाता है। आपका जो दोस्त आपसे 500 फुट की दूरी पर खड़ा है और आपको आधा इंच का नज़र आ रहा है, आपका दिमाग कभी नहीं कहता कि बंदा बोना है या ये बंदा छोटा है, इसका कद छोटा है। इनफैक्ट योर ब्रेन टेल्स यू कि ये वही बंदा है जो कि 5 फुट का, 5.5 फुट का, 6 फुट का है, और सिर्फ डिस्टेंस की वजह से ये हमें छोटा नज़र आ रहा है। अब देखिए ज़रा परसीविंग साइज इन डेप्थ, ये हमने भी पहले भी देखा था डिस्टेंस की, अभी फिर दोबारा देख लें। साइज कॉन्स्टेंसी क्या है, ये एक ही साइज का सेब है, लेकिन नोट कीजिए जब ये करीब आ रहा है तो इसका जो एंगल बन रहा है वो बड़ा बन रहा है, ये बहुत ख्याल रखिएगा। लेकिन जब इसी साइज के सेब को हम दूर ले जाएंगे तो देखो ये इक्विटी एंगल लेस देन ए कर दिया उसने, कि अब ये जो थीटा बन रहा है सर ये छोटा है। अब क्या है, हमारा दिमाग कह सकता था इसको देख के कि ये बड़ा सेब है और ये छोटा सेब है, बट नाउ एज वी आर फेमिलियर विद दिस एप्पल कि सेब का नॉर्मल साइज क्या है, एंड देन द इक्विटी एंगल, ये जो इसकी हाइट है ये भी हमें अंदाज़ा दे रही है, और फिर जो इसका फासला है डेप्थ, तो तीनों चीज़ें मिलकर हमें बता रही हैं कि सेब का एक्चुअल साइज़ क्या है। तो ये एक मज़ेदार मिसाल है कि एक ही साइज़ है, एंगल डिफरेंट है, डिस्टेंस ज़्यादा है। इसके ज़रिए से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि अगर हमने सेब देखा हुआ है, हमें उसका अंदाज़ा है, तो हम फ़ौरन कहेंगे यार ये सेब इतना छोटा सा नहीं है जितना हमें नज़र आ रहा है, इसका साइज़ इतना है। तो दिस इज़ हाउ वी परसीव द साइज एंड डेप्थ। अब इन कार्ड्स को देख लें, मैंने इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा डाली हैं और जगह जगह से लेके, ताकि आपको ख्याल, देखो अगर अब मुझे तो गाड़ी का साइज़ का पता है, आप सब बच्चे शहरों में रहते हैं, आप सबको पता है, तो हम सब बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि ये गाड़ी बराबर है। अगर एक छोटी पीछे से बस यहाँ पर अभी है नहीं, यहाँ पर होती तो हम फ़ौरन कहते हैं रुको 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 रुको, वो जो सबसे छोटी बस है ना वो इनसे बड़ी है सबसे। तो लिहाजा दिस इज़ हाउ वी परसीव साइज एंड डेप्थ, इनका फासला, इनसे फेमिलियर होना, और फिर इनकी हाइट या इनका साइज जो हमें दूर से दिखाई दे रहा है। सेम इज हेयर, ये देखो ये भी बंदे हैं, ये भी उसी साइज के हैं, और देखो ये पिलर्स हैं, ये भी एक ही साइज के हैं, लेकिन क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, साइज हमें फिर भी नज़र आ रहा है, तो हम कहेंगे कि यार ये एक से साइज के हैं। पहाड़ हमें छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस लाइन को, यू जस्ट कंसिडर दिस लाइन, व्हेन वी लुक एट दिस, तो ये हमें डिस्टेंस का अंदाज़ा दे रहा है, ये बहुत डीप है, बहुत दूर है, और फिर भी इतना बड़ा नज़र आ रहा है, यानी इंसानों से जो हमारे करीब में बहुत बड़ा है। दैट मीन्स दीज माउंटेन्स आर हाई इनफ। तो ये भी एक और मिसाल है। सो अभी हम लोगों ने आज जो देखा है, इन फैक्ट दैट वाज परसीविंग द साइज एंड डेप्थ, विजुअल एक्विटी, और ये सब कुछ। तो अभी आपने क्या करना है, इस सारे को दोहराना है, इस सब को आपने मुकम्मल करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे शुरू करेंगे, और तब तक के लिए है कि आप इसको मुकम्मल कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।